स्कूल की वदियों में एक छोटा सा सपना था, ब्लैक बोर्ड और चाक में अपना कल लिखा था। यूनिफॉर्म पे नाम लिखे, सपने दिल में भरे, बोम का कीर मिशन स्कूल हमें जीना सिखाए। सुबह की प्रेयर बेल की आवाज, टीचर की बातें यादें खास, गलतियों से सीखा गिर के संभले, यहीं से हमने अपनी राह बदली। बैक टू स्कूल, बैक टू दोज डेज, हंसी कहानियां पुराने से क्रेज। 47 years का साथ की पहचान, मुमकिन मिशन स्कूल हमारा अभिमान। बैक टू स्कूल, बैक टू दोज डेज, हंसी कहानियां पुराने से क्रेज। 47 years का साथ की पहचान, मुमकिन मिशन स्कूल हमारा अभिमान। अलग अलग रास्ते, अलग अलग शहर, पर दिल का रिश्ता रहा हमेशा अमर। किसी ने सपना जिया, किसी ने सपना पाया, पर स्कूल का नाम सबके साथ आया। ग्राउंड में दोस्ती, क्लास में फाइट, एग्जाम से पहले वाली स्लीपलेस नाइट। वक्त बदला, हम भी बदले। बैक टू स्कूल, बैक टू दोज डेज, यादों में बेस वो सिंपल से वे। 47 years of the Galilee strong, एक स्कूल एक फैमिली एक ही सॉन्ग। आज फिर मिलके हम कह रहे हैं, थैंक यू टीचर्स जो साथ खड़े रहे हैं। आज जो भी है, जहां भी है, हम इस स्कूल की वजह से ही बने। बैक टू स्कूल कहानियां साथ लाए, हर मुस्कुराहट में पुराना वक्त जगाए। 47 साल का सफर अभी और चलेगा, बोम का किर मिशन स्कूल का नाम चमकेगा। From past to present, future bright. Boom ka kir family forever united. Alumni meet 26 यादों का मेला, एक स्कूल, अनेक कहानियां, एक दिल अकेला रंप। Alumni Meet 2026 हिप हिप। तो सर, बतौर फाउंडिंग प्रेसिडेंट होने के नाते आज का प्रोग्राम को लेकर के आपका क्या विचार रहेगा? मेरा विचार और नहीं, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल and it's a very historic occasion, but momentous occasion. Historic but momentous. And I never expected this type of organization, but they are very capable people. They unitedly organized, but under the leadership of Blomi and Racing type of there. And now, I think I have got, I'm fully confident that they can stand their own feet and they can make others also stand their feet. Don't follow mission for Bomb Kakir. Bomb Kakir will be one of the historical decision-making, epoch-making organization. And it will continue to grow up, show up like anything. Nah. But in this regard, I should tell them that they have to stand unitedly. Then unitedly they can stand divided. They should understand if they are divided, it may fall. But it should not be allowed to fall down. I am totally confident on them. Their organizing ability and skill is so high. And they can conquer the world also.
But it should not be here confined, but they should go ahead. Beyond the boundary also they should go. That is what I feel. I am very confident. Very historic occasion that they have created history. They are the people. The future belongs to them. You can maintain that this future of Arunachal. And imparting education, it is very important. It is without education, it is bird without wing. Is not it? Aim and objective is very clear. They will do it. I depend on them. I believe them. They can reach to the goal, highest goal. Yeah, very successful. I'm quite clear that they will succeed it. They go beyond the boundary, beyond the horizon. Okay. Yeah, I wish them best of luck. And my blessing is always be there. Wherever they go, my blessing is there. Blessing Almighty. Bom Kakir is an orphan. That idolatry should be maintained. It should follow his principle and idolatry. An orphan boy who could succeed in his life. He became very affluent and more popular. Okay. तो सर बतौर फाउंडिंग सेक्रेटरी होने के नाते आज आपका छात्र लोग जो है एलुमनी फर्स्ट एवर आफ्टर 47 इयर्स एलुमनी एसोसिएशन करके आज जो है आप लोग को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया। आप क्या कहना पसंद करेंगे? तो मेरा कहना है आप लोग अगर इतना आप लोग ऑर्गेनाइज करके एलुमिनिया फर्स्ट शुरू करके आप लोग जब करने जा रहा है तो मैं दो बात सिर्फ बोलता है आप सब भी आगे बढ़ो और स्कूल को भी जितना बीके मिशन है उसको भी आगे बढ़ने दो, सब जिंदा हो जाओ। उतना मेरा कहना है। तो सर एक चीज़ जानना पसंद करेगा कि बोम काकिर का मतलब क्या है? बोम काकिर का मतलब था माँ नहीं है, बाप नहीं है, उसमें बच्चा पढ़ने को दिल है, पढ़ाने वाला नहीं था उस समय, इसलिए उसको हम लोग का भाषा से बोम काकिर बोला है। तो इसलिए ये सब को हम लोग चलो, ये आपांग साहब और हम दोनों बोला हो चलो इसको पढ़ाना है। उसमें दो कैटेगरी था, नंबर 1 माँ बाप नहीं है और 2 पॉइंट था माँ है लेकिन बाप नहीं है, उसको हम लोग पढ़ाना है बोल के स्कूल शुरू किया है। तो उसमें शुरू किया, आप लोग भी आया, आप लोग आगे बढ़ा और आप लोग भी इतना वो दिल बढ़ गया, तो इसलिए आप लोग भी अच्छा जिंदा हो जाओ और स्कूल भी आगे बढ़ने दो, आप लोग भी आगे बढ़ो, एलुमिनिया जिंदा होने दो। तो सर बतौर ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन होने के नाते आज का प्रोग्राम के बारे में ज़रा हमें विस्तार से बता दीजिए। ये हमारा ये 2016 से शुरू किया था, ये व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था, ये करिकुलम जी और लीडर अग्योर जी। तो ये करिकुलम जी है, अभी हमारा एलुमनी का चीफ कोऑर्डिनेटर है, और ये लीडर अग्योर जी ये हमारा ये एक मीडिया इंचार्ज है, और ये संटू पाजिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी है और मैं चेयरमैन। तो इसमें हम लोग क्या हुआ था, ये लीडर अग्योर जी और करिकुलम जी ने 2016 में शुरू करके हमको ये था कि उसका मोटो ये था कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और एलुमनी मीट का प्लान करेंगे। 2016 से होते होते बहुत साल लग गया, बीच में हमको 2016 का एंडिंग में बोला कि आप और डॉक्टर कयब मांकेंग ही लीड कीजिए कि मीडिया ये के लिए मीट का ये मीट के लिए। तो बीइंग हम दोनों बोलेंग में ये था पोस्टेड था, इसलिए हम दोनों को इजी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए यहाँ का लोकल लोग से होगा बोल के। तो उसके बाद बहुत जगह हम ईटानगर में ये कैंपेन किया, टर्न अप नहीं हुआ। पासीघाट में हमको पोस्टेड हुआ, उसमें भी टर्न अप नहीं हुआ, सिर्फ 3 आया हमारा, सिर्फ बैचमेट तालिंग जामो और टेकमी की और मैं को तीनों था। उसके बाद
ऑलमोस्ट सरेंडर हो गया था। ये 2019 हो गया, 16 से 19 हो गया। उसके बाद 19 से फिर थोड़ा ये का बाद चुप हो गया, हम लोग का कोविड-19 का साथ थोड़ा चुप हो गया। फिर हम लोग 21 आते आते डॉक्टर ओजिंग कोमुत ने ये बोला कि नहीं बड़ा भाई, चलो आए मत आए, हम एक मुर्गी होने से भी सेक्रीफाइस करके हम लोग 4-5 आदमी होने से भी हम लोग का लेता है बोल के। तो हम लोग तान लिया कि ये जनवरी 10 को था, ये जनवरी 10 को करना है बोल के। तो बाद में हम लोग डिसाइड कर लिया, हम लोग ये बोला कि अगर इसको करने का बाद आप लोग कोई नहीं आने से भी हम लोग मीडिया ग्रुप को, ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप को हम लोग टर्मिनेट कर देगा। इसके बाद हम लोग चलो अपना अपना लाइन में रहेगा। हम लोग इतना साल मेहनत किया, आप लोग साथ नहीं दे रहे बोला। तो उसमें ऐसा इम्पैक्टफुल कोई पॉजिटिव वाइब्स ये देना कर दिया कि डोनेशन आना शुरू हो गया, सब एक दूसरा का ये हो गया। तो होते 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 ये आज का दिन में आया। तो फिर बोला कि नहीं आप ही चेयरमैन रहिए, अब इतना साल से आप कर रहा है। तो डॉक्टर कयम मांगकें को जो आज हमारे पास नहीं है कि उसका मदर इन लॉ आज सुबह एक्सपायर हो गए, इसलिए वो चले गए। और तो डॉक्टर कयम मांगकें को सेक्रेटरी में, मुझे चेयरमैन में बनाया और ये कार्यक्रम जी को चीफ कोऑर्डिनेटर में बनाया। और बहुत सा कुछ हमारा असिस्टेंट पोस्ट दिया है, लेना लंबा हो जाएगा इसलिए। तो इसलिए आज का दिन में हम फिर सोचा कि हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो हम किसके लिए, हम आज कहाँ से कैसे करा हुआ, हम हु एम आई टुडे। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर किस तरह बना, मैं स्कूल को किसने फाउंडिंग किया, श्री गेगोंग अपांग जी ने, उसको हम याद किया। तो उसका घर में उस दिन हम लोग गए थे, ओयान में जाके उसको बुलाया, डैडी कि आप आ सकेगा तो हम लोग विल बी ब्लेसड। तो इन स्पाइट ऑफ हिज एज ओल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, और उसका रिसेंटली मामी भी, उसका वाइफ भी गुजर गए हैं। In spite of all those trouble, he came us to join with us, being as a chief guest. तो हम तो बहुत ब्लेसड महसूस करते हैं। और तापुम ताबी जी द फर्स्ट फाउंडिंग सेक्रेटरी, वो भी आए, वो तो यही का है। और ये कहते हुए मैं ये सम अप करना दोसिंग वेलफेयर सोसाइटी को मैं एकदम थैंक यू देना चाहता हूँ कि आप लोग ने यदि अगर बीके मिशन बोलेंग स्कूल को ज़मीन नहीं दिया होता, स्कूल तो एक पेपर में बनाएगा बोले, लेकिन आपको ज़मीन नहीं होगा। तो जैसे हम खेती करने से भी हमको उसमें ज़मीन चाहिए जहाँ में पेड़ पौधा हमारा ये उठेंगे, प्लांट उठेंगे, तो उसके लिए हमको ज़मीन चाहिए। वैसे ही स्कूल बनाने के लिए भी ज़मीन डोसिंग आप लोग ने दिया। आप लोग को हम लोग तहे दिल से, ओल्ड बीके मिशन स्कूल एलुमनाई की तरफ से मैं आप लोग को एकदम तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आप लोग जो है, जो आने वाला स्टूडेंट के लिए या फिर कह लीजिए ये बीके स्कूल के लिए आप लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप या फिर कह लीजिए स्कॉलरशिप, बुनियादी ढांचा, क्या चीज़? इसका मेरा एलुमनाई का तरफ से तो हमको ऐसा लगता है कि स्कूल को हम अभी एज ऑफ नाउ कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। स्कूल में ये स्कूल इज़ रन विथ ट्रस्ट के साथ स्कूल रन कर रहे हैं, तो इसका अलग अलग किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया है। फिर इसमें कुछ इश्यूज़ है जो मैं मीडिया में बोलना नहीं चाहूँगा, तो है उसका इशूज़ है। स्कूल को हम अपलिफ्ट करना चाहेगा वे, तो फिर उसमें कुछ अंदर में कुछ प्रॉब्लम है, विच मैं बोलना नहीं चाहूँगा, इसको ऐसे तीस रहने देंगे। आप जैसे मैं ये कि आपका प्रश्न का मौका लेते हुए आप लोग मीडिया कवरेज भी, उसमें ड्रोन कवरेज भी कर दीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ में क्या है। और ये एक आज सोमेन दास, डॉक्टर सोमेन दास जो MIT अमेरिका से जो करके आया है, PhD किया है, वो तो आज ने आप लोग का सामने घोषित भी किया है कि वो 100 स्टूडेंट को वो उसका तरफ से स्कॉलरशिप देने के लिए वो बोल रहे हैं। तो वो उसका पर्सनल लेवल से होगा, लेकिन वो उसका बोलने का मतलब ये है कि थ्रू एलुमनाई से चेयरमैन हमको आज एड्रेस करके बोल रहा था। तो कल जो भी चेयरमैन होगा, आज मैं चेयरमैन होगा, कल तो कोई यंगर लोग लेना पड़ेगा, क्योंकि उम्र हो गया, दौड़ भाग में तो रह नहीं सकेगा होगा। तो यंगर जनरेशन लोग इसका जो मौका दिया वाला को, फैसिलिटीज़ को उतारना चाहिए। और ये इसका एक पॉजिटिव ये होगा कि हम स्कूल विज़िट करने का सोच रहे हैं। आज तो समय कैसे होगा मालूम नहीं, टुमारो वी में विजिट द स्कूल, मोस्ट प्रोबेबली ड्यूरिंग द असेंबली टाइम। तो हम एक ऐसा करने जा रहे हैं कि हमारा प्लानिंग ये कि एक हमारा एलुमनाई का एक फ्लैग हम उसको हैंड ओवर करेंगे। तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होगा कि अच्छा ये एक फ्लैग क्या है, उसको मालूम होने के लिए, उसको यूनिटी का, इंटीग्रिटी का
और मेहनत करने का। और आज जो एलुमनाई कराया है वो किस स्कूल से आया है, उसी स्कूल से आया है आज जहाँ उन लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक उन लोग का एक इंस्पिरेशन मिलने का बहुत मौका है। तो वो फ्लैग हैंड ओवर करेगा, उन लोग को देंगे नहीं, बट विल गिव इट हैंड ओवर इट टू द प्रिंसिपल इंचार्ज, कि उसको हमेशा याद दिलाए कि फ्लैग को लेके कि तुम्हारा सीनियर्स लोग ऐसा ऐसा आज है कि तुम लोग भी ये बनना है बोल के। ये हमारा तरफ से मैं सोचता हूँ कि ये एक इंस्पिरेशनल आइडिया होगा। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि लगभग कितना जो है आज जो है टर्न अप हुआ है, साथ ही साथ इसका आप लोग का जितना भी बैच है उसका सक्सेसफुल स्टोरी कितना % तक है? मुझे रजिस्ट्रेशन का इतना ये अभी अपडेट तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कि 200 आया है, 200 आया है। हमारा अनुमान था कि 250 प्लस था जितना हमको कंट्रीब्यूशन किया है, और जो डेलीगेट्स लिस्ट जो हमने एक्सपेक्ट किया था, और जो हमारा एलुमनाई का ड्रेस कोड बनाते समय में हम 253 ऐसा नोट्स का हम एक्सपेक्ट करके बनाया था। आज 200 ऐसा कुछ आया है डेलीगेशंस, डिफरेंट पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इवन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। हमारा जैसे सोमेन दास आसाम से आया, और हर्षवर्धन जो है कर्नाटका से आया है, और बहुत लोग आ नहीं पाया। आकेश आया क्या? आकेश वो इंग्लैंड से आना था, नहीं आ पाया। यूके से आना था, वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था होगा, इसलिए ज़्यादा कुछ ये जर्नी में या कुछ प्रॉब्लम था होगा, इसलिए नहीं आ पाया। सर सक्सेसफुल % कितना तक है इसमें से? जितना % सक्सेसफुल ये इवेंट का नहीं आप लोग का जो बैच का जो आगे आने वाले पीढ़ी को इंस्पायर हो सके। बहुत है, हम गिन नहीं सकेंगे, बहुत है ऐसा। तो देखिए, मैं आज असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, मेरा दोस्त डॉक्टर कायम मंगंग जो सेक्रेटरी है वो डेंटल सर्जन है, पापिया दास वो डॉक्टर है और कम्युनिटी का मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, और तालिंग जामो मेरा दोस्त तालिंग, मेरा बेच का ही मैं बोल रहा हूँ, मेरा तालिंग जामो। तो मेरा एक बेच का इतना होने से दूसरा बेच को आप सोच के देखिए, तालिंग जामो टीचर है और फिल्म मेकर है, ऐसा बहुत है। मैं सिर्फ ये मेरा बेच का बोल रहा हूँ, और है बहुत है। तो सर आज आप लोग को देखा गया तो आप लोग भी ट्रिब्यूट भी कर रहे थे जो उस समय आप लोग का साथ में था जो बेच ना, लेकिन अभी इस दुनिया में नहीं रहा है, ऐसा कुछ। हाउ मेनी बेच आर देयर? हाँ जी, हमारा इस दुनिया में नहीं होना बहुत है, और कुछ को हमको लगता है कि हम लोग मिस भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर तो हो गया, ज़्यादातर हम लोग इंक्लूड किया, क्योंकि हम लोग कि कितना था 49 रिकॉर्डेड 49 है। तो इसमें हम लोग सबको ट्रिब्यूट किया है, जिस किसी को भी अगर अनजाने में मिस किया हो, आप लोग कई वे में भी हम लोग को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से देख रहा हो, हम लोग क्षमा चाहते हैं। और आज हम लोग का स्पेशली मामे यादव मैडम जी को, आपांग जी को, हम लोग फॉर्मर MLA था और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का बेटर हाफ था, वो उसके लिए भी हम लोग आज कॉन्डोलेंस मैसेज ये किया था, उसके ये था। तो सर लास्टली थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आप लोग समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज में देखो, हेल्प योरसेल्फ, हम ऐसा बोलेगा। मैं ये बोलूँगा, ये जो हमारा साथ जो कार्य है, हम लोग यहाँ में बीइंग बोलेंग फार अवे फ्रॉम क्या बोलेंगे, वो कुछ रिसोर्सेज जैसे ह्यूमन रिसोर्स ही बोलेगा, और कुछ मटेरियल भी यहाँ नहीं है। तो हम यहाँ में ये इसको कंडक्ट करने के लिए हमने खुद बीइंग ए चेयरमैन, मैंने खुद चेयर उठाया, चावल उठाया, कारपेट को उतारना पड़ा, थोड़ा बैकबोन में भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो हम खुद करना पड़ेगा। व्हेन यू डू योरसेल्फ, तब दूसरा आ गया। लीडर डोंट स्टैंड बिहाइंड, लीडर लीड्स। तो लीड्स मीन्स इन एवरी फील्ड आप काम करो, आप आगे बढ़ो ना। तो एंड और एक बोलेगा, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे। आप करना चाहेगा, करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा नहीं क्या जैसे हम हिमालयन में चढ़ना है तो या AC रूम में बैठ के प्लानिंग करेंगे, नो, वी हैव टू एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ेगा वो चढ़ने से पहले। वैसे ही जैसा ये करने से पहले हमको तो 10 साल से पहले हम आपको बता दिया क्या होने वाला, हमको मालूम हो गया था, क्योंकि 10 साल से आज देखने को मिला। यही। थैंक यू सर। वेलकम।